अनहर्ड के पिछले सेशन में आपको समझ आया होगा कि एजुकेशन असल में है क्या, क्या उसका पर्पस है, क्यों उसे करना है। सो अभी कुछ ऐसा माहौल है कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो और ख़ुद को देख रहे हो। ये वाला जो एपिसोड रहेगा उसका काम सिर्फ इतना रहेगा कि वो शीशे को थोड़ा साफ कर देगा और आप खुद को थोड़ा बेहतर देख पाओगे। माय नेम इज़ रोहित गर्चा और डॉक्टर संदीप सिंह जो कि देश भगत यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं ताकि वो शीशा थोड़ा और साफ हो जाए जिसमें आप खुद को देखते हैं। दिस इज़ अहॉय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड। सो यहाँ पे सर वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन अ जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू व्हेन वी से कि फॉर्मल एजुकेशन इज कंप्लीटेड। हाउ इज इट गोइंग इन इंडिया? कैसे होता है इंडिया में ये? Do you want me to be a critic, or do you just want me to state facts? Be a critic, sir. Generally, what has been seen, the basic education, that is the primary education, primary, secondary, senior secondary, that is where the foundation of the citizens is made, or anybody for that matter. Citizens per se, like it can be anybody, but the foundation is made. That is where usually our system is too lenient. When you look at teachers, sometimes they don't go to classes. You know, I've seen cases where they would be employed in some school in some rural area, but they won't be going there. So basically, they may have good intentions, but वो करते नहीं है. तो end of the day, because their children don't study there, they are not serious about it because they don't have that enough skin in the game. I'm using that phrase from some big author but that is a genuinely serious issue here. Whenever, if you would have noticed in schools, especially in the private ones, I've seen this. There's a general principle of philosophy where the children of the teachers are given special benefits so that they study in the school. Their children study in the same school. There's a reason behind that. Because if your child studies in the school, you will be committed to it. A genius move. Right? What a move. Similarly, in our general state system, we don't have that skin in the game. So थोड़ा और एक्सप्लेन करो, स्किन इन द गेम का क्या मतलब हुआ? अगर कोई चीज खराब होगी, देखो अच्छे में तो सारे साथ हैं, पर अगर कोई खराब होगी then you are punished also partially or somewhat in that, so you will have to get some pain. जैसे हम कहते हैं ना स्किन इन द गेम में, मतलब स्किन की अगर चूटी मतलब चुंडी वंड दी जो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, so ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾर्ट रहे कि हाँ, if I do something wrong, I will have to feel some pain. I have to experience some difficulty. And what better than to say, oh, your kids should be in it if possible. But it does not need to be for everyone. You just need some percentage of teachers. And because once one teacher is there, teachers are friends. They'll say, यार मेरा बेटा है, बेटी है, ध्यान रख लेना, पढ़ाना अच्छा, तो एक को पढ़ाएंगे तो पूरी क्लास को पढ़ाना पड़ेगा ना. They'll be more vigilant. They have to be. From that perspective, if every teacher feels that my child is there or my friend's child is there, I will still be serious about it. Stake दे दिया वहाँ पे. And absolutely. Collectivism यहाँ पे आना भी चाहिए because ultimately ये वो जगह है. हाँ. That is made for that only ना, कि सारे मिलके यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम impart करेंगे some knowledge. Absolutely. ये हम बात कर रहे हैं अभी lower education की. हाँ जी. I would say still primary 5th 6th तक तो हो सकता है. Okay. उसके बाद then the children grow up, तो उसका impact होना शुरू हो जाता है. They want more independence and things. Right. But I still believe that end of the day, it is the schooling till the 12th
previous 12th. Now the systems are changing with the new Right. but the previous system में जो हम कहते थे 12वीं क्लास, राइट 10वीं 12वीं, है ना, Right. 11th 12th वाला कॉन्सेप्ट. जो हमें सुन रहे हैं सर अभी, जो यहाँ तक पहुंचे हैं लिंक्स वगैरह पे क्लिक करके, उनको भी यही ज्यादा क्लिक होगा. तो वी आर यूजिंग द राइट टर्मिनोलॉजी. राइट. जिन पे एनईपी लगना है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो यहाँ नहीं आएंगे. ठीक है. जी. As long as the listeners understand, that's okay. जो मतलब बेसिक है ना, जो बेसिक फाउंडेशन है बच्चों की, वो स्कूलिंग ही है. I remember that my father telling me many times, you know, he used to highlight this fact that they studied, you know, their school that they studied in, he had one class fellow and they were very competitive about their success. But see, वो culture बनाया गया. And he did not study in a government school. It was a charity school, but where there was a sense of community. एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आपने कंपटीशन वर्ड बोला, मुझे बैकग्राउंड में कोऑपरेशन भी दिख रही है, बिकॉज कम्युनिटी और एक कॉमन पर्पस दे दिया. Yes. सो सच अ ग्रेट एग्जांपल. इवन आजकल भी व्हाट आर सरकार इज ट्राइंग, वो इसका बैलेंस ही है. एक तरफ तो नीति आयोग के थ्रू वी आर गाइडिंग ऑल दी स्टेट्स, और इसके साथ ही में नीति आयोग गिव्स आउट 10s and 20s ऑफ इंडेक्सेस जिसमें वो रैंक दे देता है. बिल्कुल. कि पंजाब फर्स्ट आ गया जी इसमें एजुकेशन में, केरला इसमें फर्स्ट आ गया जी, गुड गवर्नेंस तमिलनाडु में होगी है. Absolutely. सो सच अ बैलेंस. सो दैट मीन्स कि दिस बैलेंस वर्क्स. It works. Yes. थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं सर, व्हाट इज गोइंग ऑन. See, in our present system where we are saying, you know, government should do everything, you know, general trend है कि government सब कुछ करे. राइट. वो ट्रेंड में हम ये भूल रहे हैं that government कभी नहीं करेगी. क्या बात है. वाह. कभी नहीं करेगी. वाह. Because they don't have that interest, you know. राइट. इलेक्शन जीतना एक पार्ट है, ठीक है, they'll do it that much, but they can never be committed to that much because till the time we don't make the system where the actual operators of the system, that is the teachers, the principal, the parents, the school management, whoever local management, whatever you have there, till the time they are not in that system, वो पार्ट जब हो जाएगा तो immediately things will change. And अभी वो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम at a certain level is not good. हम एग्जाम्पल देते हैं, like I remember many years back some person I met from America, so he was highlighting that in America they have public schools, they only have public school, and then they started the concept of a charter school. What do you have a charter school there is what we have a private school here, or a aided school, Right. where there is a certain sense of competition also. राइट. So you're having a balance. But even that is not enough. It works only when either they are very focused, the person who's managing it is very focused, or the people who are actually operating the system, that is the teachers and the principals, and you know, they are involved and they feel that this is something which makes a difference. They have to have a sense of purpose. They need to believe that what they are doing will bring a change for good for them and for others. Maybe not for others, because हर बंदा दूसरों के लिए नहीं सोचता, पर अपने लिए सोचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वो अपने लिए सोच, मतलब जो उसका खुद का पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट है, बिकॉज एवरीवन हैज सेल्फ इंटरेस्ट. वी कांट से कि नहीं जी सेल्फ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, यू आर सेल्फिश, दिस दैट, नॉनसेंस. एवरीवन हैज सेल्फ इंटरेस्ट. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेंस ऑफ आई. ईगो आई इसलिए ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज वो है, राइट. उसको सोसाइटी को टेम डाउन करना सीखना पड़ता है. सो इफ से आई हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट और यू हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट, इट शुड बी एन अलाइनमेंट विद द कॉमन पर्पस. बस ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर वो हो गया तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. फिर आपने कंक्लूड कर दिया सर. लवली यार, मजा आ गया. ठीक है सर, तो अब एक स्टेप और आगे जाते हैं. ठीक है. मैं आपको बैकग्राउंड याद करवा देता हूँ कि हम बजूका ट्रेन में हैं अभी. हाँ, राइट. तो हमारे स्टेक होल्डर्स, मैंने इसीलिए आपको आपके बहुत खास दो वो जो हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको मैंने आपके माइंड में रखा हुआ है. बिल्कुल. दे हैव द सेंटर स्टेज. वेरी नाइस. एंड एक और प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे ये लगती है
कि टैलेंट डज नॉट पेनिट्रेट टू टीचिंग? हाँ जी, ये होता है जनरल ट्रेंड होता है कि पहले जी इंडस्ट्री में जाएंगे फिर इधर जाएंगे, वो होता है। बट वहाँ पे एक चैलेंज, एक डिफरेंट पॉइंट भी आता है। द वंस हु रियली बिलीव इन इट दे विल कम एंड टैलेंट क्रिएट हो जाता है। ये भी क्लियर है, you can create talent, you just need to have a system to create the talent. Challenge comes how to retain the talent. You can create it. आज हम प्रॉपर ट्रेनिंग करा के टैलेंट क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगी हाउ डू यू रिटेन इट। वो रिटेन तब होगा जब उसका सेंस ऑफ पर्पस या उसका वो स्टेक होल्डर होगा या होगी, उसके बिना नहीं होगा। कैसे बना सकते हैं उनको स्टेक होल्डर? जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दी, दिस इज एन एग्जांपल। सो सिमिलरली यू हैव टू थिंक how do you ensure that their actions, their self-interest should be in alignment with the purpose of a good education where the bazooka train can be happy and successful and have a fulfilling life. अभी एक तो छोटा है बहुत, पर चलो बड़ा हुआ स्कूल जाएगा, Right. तो वो पर्पस को देख के चलना पड़ेगा कि हाउ डू वी इंश्योर दैट उनकी अलाइनमेंट के साथ रहे। तभी वो फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज हम कहीं रूल्स मैटर करते हैं, येस दे मैटर, पर एंड ऑफ द डे व्हाट इज द पर्पस। अगर मान लो आई से माय सन इज स्टडिंग इन अ सर्टेन स्कूल, इफ इट इज एनी अदर स्कूल आई एम ओनली अ पेरेंट, इफ इट इज समवेयर वेयर आई हैव एन इंटरेस्ट ऑफ हाउ टू रन इट, आई वुड इंश्योर कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। तो ऑटोमेटिकली एनीवन हु स्टडीज इन दैट स्कूल वो ऑटोमेटिकली गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहे हैं वैसे अभी हम। डोंट यू थिंक इट ज़्यादा कुक्स हो जाएंगे? मतलब इफ़ एवरी पेरेंट हैज़ सम स्टेक है, हालांकि मतलब उनका बच्चा इज़ दी सबसे बड़ा स्टेक, बट अगर उनकी से स्कूल्स में आने लग जाए, सो यू नो हाउ क्रेजी पेरेंट्स कैन बी। You don't need to have it like a single parent thing. You can have a system in place. ओके, You don't need to. मैं एग्जांपल देता हूँ प्राइवेट स्कूल्स का, because it's something that I understand. You have 20 private schools doing different things. I as a parent, if I don't like certain thing, I can shift it. right. Okay. Whereas this option I as a middle class can afford, because I can afford to pay the fees. A poor man or a poor woman's child cannot afford. उनके पास जो है वही है. So idea is how do you bring resources in their pocket so that they can also experience the benefit of competition. उससे improvement होगी. It is again making sense in the context like Mahatma Gandhi. He always talked about decentralization. And Wonderful idea. in every aspect अभी आजकल यही चल रहा है decentralization के ऊपर. Local, सब local देखो. और होना चाहिए. Gandhian ideas are very good ideas and they will help us in that sense. But we can't close our eyes to the world. वो तैयारी तो रखनी पड़ेगी आपको. जो हमने ओरिजिनली बात करी थी NEP वाली, Right. वो अल्टीमेटली कनेक्ट होती है. वी हैव टू डिसेंट्रलाइज, बट वी हैव टू बी रेडी कि जी दूसरा बंदा आ सकता है, तैयार रहो. Okay. अगर हम स्टॉप करेंगे तो देन देयर विल बी डिफरेंट ट्रीटीज, व्हाटएवर कमिटमेंट्स दैट वी हैव एज अ गवर्नमेंट. वी कांट चेंज द कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज वो जो भी प्रेशर्स में उन्होंने करी हैं, ट्रीटी में करी हैं, वो करी हैं. अब तो सिर्फ ये जो हमारे पास है उसको बेटर कैसे करें. Got it. चलिए सर, ट्रेन में थोड़ा आगे चलते हैं. हाँ जी, अगले स्टेशन पे, बिल्कुल. which is +2 12th के बाद वाला. राइट. What is the scenario that is going on? ये तो आपको खासकर पता होगा. फर्स्ट हैंड जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ पता नहीं. बट डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर डाल दिया ना ये बोल के. सी हायर एजुकेशन में चीज़ें ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इज दैट कॉन्सेप्ट वेयर थिंग्स आर हैपनिंग. सो न्यू चेंजेस आर कमिंग इन. एग्जीक्यूशन वक्त बताएगी. सर अभी कहाँ आए होंगे चेंजेस? अभी तो 2022 में तो शुरू हुआ है. हाँ जी, तो एग्जीक्यूशन होनी शुरू हो गई है ना. Right. पर वो करना तो है ही. सो बट वो उसका बेनिफिट ये आएगा कि ऑटोमेटिकली थिंग्स विल मूव इन द डायरेक्शन कि हाँ एवरीवन विल गेट रेडी. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं. जो बंदे पुराने सिस्टम में बैठे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है
क्योंकि वो एक सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में फंसे हुए थे. दे आर ट्रेन्ड फॉर सो मेनी इयर्स इन दैट. राइट सो नाउ दे आर फाइंडिंग कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. राइट. तो दे ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन कि यूजीसी क्या बोलेगी. यूजीसी खुद कह रही है बेटा करो. राइट. So it opens the idea, opens their mind. We can do it. Okay, fine. So it opens their mindset to it. इवन सर पर्सनल एक्सपीरियंस में भी आई हैव सीन कि टीचर्स जो हैं थोड़े से जो लाइक ओवर 40 या फिर 50 के आसपास के हैं, दे रेजिस्ट टू मच चेंज के लिए. अब मैं जनरलाइज करना तो नहीं चाह रहा था, बट मेरे सैम्पल साइज के हिसाब से तो ऐसा ही है. हाँ, वो कभी कभी हो जाता है. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यस, रेजिस्टेंस हैज बीन देयर इन द पास्ट, बट with the new things it is easier. It is much easier. In case they don't then go back to their ego thing. If they go to their ego thing, फिर वो कभी नहीं समझेगा या समझेगी. Okay. If they are genuine and they are genuinely concerned about something or someone, क्या ये issue है, इसको solve करना है, तो they'll understand. ऐसा हुआ है कभी कि कोई ईगो की वजह से कोई आर्क आपको मतलब दिख जाता है कि पर्सनली मुझे तो पता लग जाता है कि यार ये अब ईगो की वजह से पॉइंट फंस रहा है या फिर सच में कोई मुद्दा है इसमें. तो आपके एक्सपीरियंस में होता है ऐसा, मतलब अक्सर होता है? अक्सर नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता. अब क्यों नहीं, उससे निकाल दिया क्या आपने वो जो जिनके साथ होता था? नहीं. ओके. टाइम के साथ पर्सन को आइडिया हो जाता है कि then you if someone is stubborn, then you also are persistent about your idea. Oh, got it. But you need to be sure that you are logically correct. Otherwise, it is better to listen to them and agree to their terms. There's no point अड़ना. अपने sake के लिए नहीं अड़ना. उसने कोई point बोला, that person is giving an idea which is very good. Right. आपको पता है अच्छा है, तो यार better you concede. Right. या तो convince कर लो या convince हो जाओ. आज से 300 साल पहले बुल्ले शाह साहब ने कुछ लिखा था कि मक्के गया गल मुकदी नाई, पावे 100 जुम्मा पढ़ाइए. गंगा गया गल मुकदी नाई, पावे 100 गोते खाइए. गया गया गल मुकदी नाई, पावे 100 पंड पढ़ाइए. बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जे मैनू दिलो मुकाइए. तो इस एपिसोड के अंत में भी एक वही सोल्यूशन निकला जो ऑलरेडी हमारे पास बुल्ले शाह साहब ने दे रखा था कि बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, कि ये बात तभी खत्म होगी जे मैं ईगो जे मैनू दिलो मुकाइए. तो इसके बाद एक बहुत सरल सा सवाल निकलता है कि इज एजुकेशन रिक्वायर्ड एट ऑल? इसी को जानने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में. माय नेम इज रोहित गर्चा. दिस इज Ahoy with Roy presents Unheard.